خاران سے ہمارے بیورو چیف سلمان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ خاران میں ایس پی عبدالحق راہیس کی سربراہی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں ڈی ایس پی قادر بخش ظاہری، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر حامل رند، ایس ایچ او خیر بخش مینگل، پولیس آفیسر گلبدین بلوچ اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران اور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں عوام نے مختلف مسائل، خاص طور پر امن و امان، منشیات فروشی اور ٹریفک کے حوالے سے اپنی شکایت پیش کی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ضلعی ترجمان ندیم بلوچ نے چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چور لوگوں کے گھروں میں گھس کر قیمتی سامان چوری کر رہے ہیں۔ ایس پی عبدالحق راہیس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کی صورتحال اور منشیات فروشی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے شہریوں کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری قرار دیا اور بتایا کہ ایس ایچ او خیر بخش مینگل کی قیادت میں 30 سے زائد جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل کی نشاندہی کرنا اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ اس موقع پر ایس پی عبدالحق راہیس، چیف آفیسر طاہر حبیب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر حاجی غلام سرور کبدانی، بی این پی کے ندیم بلوچ، نصیب اللہ کمرانی، مولانا نعمت اللہ حبیبی، مولوی عظمت اللہ انقلابی، چودھری سنیل کمار، انجینئر شعیب مزارائی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا جب ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے تب ہمیں ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوگا کہ ہم کس پریشانی سے، کس طرف سے گزر رہے ہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی آپ کی صحت سے متعلق کچھ تکالیف سے متعلق کچھ سوالات کرتا ہے، تو الحمدللہ آپ نے نہایت مثبت ہمیں رسپانس دیا اور بحیثیت ایک محکمے کے ضلعی سربراہ کے انشاءاللہ میں اپنی بھرپور اور مخلصانہ کوشش کروں گا کسی حد تک، جہاں تک میرا بس چلے، میں اپنے فرائض نیک نیتی سے سر انجام دوں گا۔ اس سلسلے میں نے اپنے فورس کے جوانوں کو، افسروں کو، ذمہ داروں کو بھی ضلع کی سطح پر ان کو بھی دعوت دی تاکہ یہ آئینہ جو عوام ہمیں دکھا رہی ہے وہ ہم دیکھیں، اس میں اپنا چہرہ دیکھیں کہ آیا ہم اپنے فرائض کس حد تک سر انجام دے رہے ہیں۔ منافق سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافق نہ بنا۔ جو ہمارے دل میں ہے وہ ہماری زبان پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں اپنے گریبان میں جھانکوں گا کہ میری کیا صورتحال ہے، آیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکوں گا؟ عرض کرتا چلوں، ہمارا سسٹم بدقسمتی سے ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم روئیں تو کس کو روئیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے شعور کا وہ سطح نہیں ہے جس سطح پہ ہمارے لیے قوانین اور ایک طریقہ کار بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کوئی بھی جرم ہوتا ہے، ابھی ایک منشیات کے جرم کی آپ کو مثال دے دوں، ہمارے تفتیشی افسر صاحبان جب ان کے پاس کوئی کیس آتا ہے، پہلے تو ان کی گرفتاری وہ والا سلسلہ چلتا ہے، جب اس کے پاس کوئی منشیات کا کیس آ جاتا ہے تو پھر وہ جو سیمپل ہے اس سے وہ علیحدہ کر کے وہ تجزیے کے لیے کوئٹہ بھیجتے ہیں۔ قانون نے ہمیں پابند کیا ہے کہ آپ نے 72 گھنٹے میں اس کو تجزیہ کروانا ہے۔ جب ہم کوئٹہ بھجوا دیتے ہیں تو ہمارے صوبے میں وہ سہولیات نہیں ہیں کہ اس کے مطابق اس کا رزلٹ ہمیں ملے تاکہ اس کو سزا ہو۔ دو قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں پریزمپٹیو اور دوسرے کو کنفرمیٹیو۔ ہمارے بلوچستان میں پریزمپٹیو تجزیہ کرنے کی سہولت ہے لیکن کنفرمیٹیو کی سہولت نہیں ہے، صرف اس وجہ سے یہ ہمارے ملزم بری ہو جاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں وہاں تک لیبارٹری تک بھیج دیتے ہیں، ابھی منشیات بمشکل کسی شخص سے 3-4 ہزار روپے کا اس سے برآمد ہوا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پولیس کے اس پر 30-40-50 ہزار روپے لگ جاتے ہیں ایک کیس پر۔
यहाँ से हम एक जवान को भेजते हैं, बेचारा यहाँ से किराया करके चला जाता है, वहाँ वो फीस लेते हैं, ठीक है, होटल में 1-2 दिन वो रहता है, फिर वापस वो लेके आ जाता है, फिर यहाँ तफ्तीशी ऑफिसर चालान दोबारा बना लेता है उसमें, अगर नामुकम्मल चालान होता मुकम्मल चालान बना के फिर अदालत में पेश करता है। फिर गवाहों को परखता है अदालत, गवाहों के बयानात में थोड़ी सी कमी बेशी हो गई, ठीक है, फिर उसको शक का फ़ायदा देकर बरी कर देते। वो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, क्रिमिनल इज़ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, यानी उसका पसंदीदा बच्चा है, जो मुजरिम है कानून का पसंदीदा बच्चा है। तो बदकिस्मती हमारी है, ये एक मामूली केस की मैंने आपको मिसाल दी, और उसमें लिखा होता है कि ये हमारे सूबे में वो 3.5-4 करोड़ रुपए की कोई मशीन है, उसमें उसको धुआं देते हैं, फिर वो धुएं का टेस्ट होता है, वो हमारे सूबे में नहीं। इस बारे में मैंने अफसरान बाला के भी गोश्त गुजार करवाया। मुलजिम कुछ अरसा बंद हो के फिर वो छूट जाता, उसको पता है कि मैंने छूट जाना है, वो दोबारा फिर जुर्रत कर ले। बाकी केसेस भी हमारे इसी तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी कोशिश करनी थी वो कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे, नेक नीति से करेंगे। आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे साथ ताउन करें। हमारी आंखें, ठीक है, बंद हैं, हमारी आंखें आप हैं, आप हमें बताएंगे कहाँ जुर्म हो रहा है, किसने जुर्म किया, ठीक है, सिर्फ मुझे इतला दें। अगर आप किसी पे भरोसा नहीं है, सिर्फ मुझे इतला दें, मैंने फ़ोन नंबर आप अपना आम किया हुआ है, ठीक है, अपने जवानों को भी नोट करवाया है कि सिर्फ मुझे आप एक मैसेज करें, ठीक है, फिर उस बंदे को पकड़ना मेरा काम। तो हमारे हवालात जो जुडिशल लॉकअप है हमारा, वो भी पुलिस के ज़िम्मे है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, उसमें बमुश्किल 3 कमरे हैं, और उसमें इस वक्त हमारे 33 कैदी हैं। जो बजट हमें मिल रहा है उनके खाने पीने के लिए, इस बार वो बजट से कई गुना, क्योंकि हम कैदी इतने ज़्यादा थे, ये कार्रवाइयों की वजह से मैं अपने, ठीक है, फोर्स के जवानों को जो मेरे दस्ते बाजू हैं उनको दाद देता हूँ कि कभी 33 बंदे इधर बंद नहीं हुए हैं, ठीक है। जब हम कार्रवाई करेंगे तो लाके इधर ही बंद करना है हमने। कभी भी आप हवालात देखें उधर हमारे सब जेल में भी, वहाँ हमारी जो गुंजाइश है उससे ज़्यादा लोग बंद हैं। पंचायत के हिंदू बिरादरी के भी नुमाइंदा इधर आए हुए हैं, उनसे भी ताउन चाहूँगा कि उसमें हम एक मुस्तकिल इसका हल निकालें। अगर वो कहते हैं कि हम खुद नहीं पीते हैं, ठीक है, उन्होंने बयान भी दिया है, तो हम कोशिश करेंगे लाइसेंस ही ख़त्म करवा दें उधर से, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो बाकी मनशियात फरोशी के सिलसिले में हमने, या हम जो अड्डे थे उनमें कुल्लान में भी हमने कार्रवाई की, जिस तरह हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों ने कहा। अब्दुल रसूल नाम भी था कोई, गुलाम रसूल का, उसको पकड़ा। तो बाकी भी इंशाल्लाह हम जो हमें इतला मिलती है हम करेंगे। बाकी हमारे वसाइल भी इस मरतबा मीर शुएब साहब ने, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें रिपेयर में कुछ पैसे दिए। हमारी 4 गाड़ियाँ जो चलने के काबिल नहीं थी उन्हें हमने ठीक करवाई। तो बाकी इंशाल्लाह आगे भी उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें हमारे साथ ताउन जारी रखें। एक ताने या एक गश्त के लिए हम गाड़ी उधर जो बताया था मैं, सरे खारान में बताया था जी, तो वहाँ भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक गाड़ी हम अपनी उधर चलाएं। इसके लिए हमारी नफरी उधर पीटीसी में इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है, 60-65 बंदे हमें आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारे अपने फोर्स के जवान भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। इन पर भी बहुत मुशक्क़त है, मुझे इसका एहसास है कि वो बजाय 8 घंटे के 12 घंटे भी ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे भी ड्यूटी कर रहे हैं, मजबूरी की वजह से, नफरी की कमी की वजह से। तो उसके लिए इंशाल्लाह उनका भी फिर बोझ हल्का हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है ट्रैफिक के मुतालिक हमने ये जो मंडी है हमारा बाज़ार का, उसमें 5 बंदे परसों मैंने लगाए थे, रिक्रूट थे, वो भी आपने देखे होंगे इंशाल्लाह। अभी उम्मीद है कि उससे भी ये काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादातर मंडी की शिकायत मुझे आती है कि वहाँ ट्रैफिक जाम होता है। और इसके अलावा जो है रात को चौकीदारों का मसला है, उस बारे में इंशाल्लाह आपके साथ बैठ कर हम एक लाएअमल बनाएंगे। पुलिस हमारे मुहाफिज है। अक्सर हमने सुना है कि कोई चोरी करता है, जो मौलवी साहब ने बोला कि सीना जोरी यही है कि कोई 10-12 बंदे सीटीडी की वर्दी में, सर्फ गाड़ी में, पिकअप गाड़ी में एक बलोच औरत के घर में जाएगा
ये सी नजूरी है। DPO साहब, आप आज अगर आप यहाँ पर CTD वालों को बुलाते थे फिर भी अच्छा था, या कमांडेंट साहब को बुलाते थे फिर भी अच्छा था, क्योंकि हम भी इस रियासत के बंदे हैं। वो जो औरत अपने घर में अपनी इज्जत और अपने बच्चों के साथ रह रहे, वो भी इस रियासत के है, वो भी पाकिस्तानी है। आया CTD को या DPO साहब को या DIG साहब को या कमांडर साहब को इतना इख्तियार नहीं है, इतना मालूमात नहीं है कि एक घर में 4-5 औरतें और एक मर्द को कमरे में बंद करके, हत्या कि उसके गैस सिलेंडर को भी गाड़ी में बिठाते हैं। 10-12 बंदे रात के 10 बजे 12 बजे किसी के घर में, किसी बलोच के, किसी मुसलमान के घर में आ जाएं और इंतजामिया को मालूम नहीं है। सर माजरत के साथ आपके SHO को ये सभी मालूम है कि नदीम अपनी बोरिंग में गया या बाजार में। कैसे आप इंतजामिया के बंदे, कैसे आपकी CID एजेंसी वालों को मालूम नहीं है कि 10-12 बंदे 3-4 वाक़े ऐसे हुए हैं। सर हम भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है, पुलिस वाले भी हमारे भाई है, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। सिर्फ हम अपना इज़हार कर रहे हैं कि हम भी इस मुल्क के शहरी है, हम भी इस मुल्क को मानते हैं, हम भी इस कानून को मानते हैं। आया किसी के इज्जत नफ्स को इतना मजरू करना? आप लोग अपने इदारों से मीटिंग करें, आप अपने बड़े से बड़े इदारों को बुलाएं कि ये क्या तरीका है। कोई एक मोटरसाइकिल क्या बोलते हैं मंशियात फरोश एक घी चोरी करता है किसी दुकान से या साइकिल से या सरिया किसी जगह से चोरी करता है, लेकिन सर माजरत के साथ वो चोर या कार्ड वाले अक्सर हम लोगों ने थानों से सुना है, यार वो तो उसको हमने छोड़ दिया, वो कार्ड वालों का बंदा था, उसने फोन किया है। यार हम किधर है, हमारे पास CNRC है, हम भी शनाख्त कार्ड रखते हैं, हम भी इस मुल्क के। वो कौन है कार्ड वाला? वो कार्ड वाला पहले मुर्गी चोरी करता था, वो कार्ड वाला पहले बकरी चोरी करता था। आज DPO साहब आपकी इंतजामिया ने, आपकी रियासत ने उसको मोतबर बनाया है। वो कौन है? वो कौन है जो चोरी करता है और आवाम को चूस रहा है, गरीब मिस्किन औरत को चूस रहा है, उसके जेवरात छीन लेगा। खुदा की कसम बलोच औरत के कपड़े बहुत इज्जत रखती है। हमारी माओ और बहनों को इस कमीनों ने वो कपड़े भी संदूक से निकाला है। 12 जोड़ा कपड़े, एक कपड़े के बलोच का वो लाख रुपए कीमत है उसका। सर माजरत के साथ आप DPO साहब, आप शरीफ बंदे, आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत से भी जुड़े हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये आज वाजे करो कि हम लोगों को कि भाई वो कार्ड वाले कौन है, उसकी पुष्टपनाही कौन कर रहे हैं चोरों के। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बैसियत सियासी पार्टी, मौलवी साहब बैठे, सब बैठे, हम लोगों ने कभी मंशियात आप लोगों ने चाह पलेगा हमने मंशियात फरोश की हिमायत नहीं किया, हमने बयान नहीं लगाया या चोर का इधर कोई सियासी पार्टी ने सिफारिश नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह शोएब जान हमारा MP है, हम मान रहे हैं, वो सूबाई वजीर है। अगर आप लोगों को कोई खदशात है उसके साथ शेयर करो, जिक्र करो, ये सिस्टम ख़त्म करो। बहुत अच्छा, वहाँ सिलेंडर भी है सर, खाना भी बनाते हैं सर, वहाँ खाना भी बनाते हैं, बेचते भी हैं और इकट्ठा बैठ के सर खाना खा लेते हैं सर। पहले पुलिस को मैंने बोल दिया, उससे पहले तकरीबन मेरे ख्याल 6 महीने से 1 साल पहले उन्होंने अच्छा खासा सर तकरीबन 27 अफराद उन्होंने गिरफ़्तार किए थे सर। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि खुर्शीद अब इनको क्या करना है। मैंने बोला मेरा घर लाओ। तो लाजमी कि वहाँ जगह का कुछ मसला होता है या बीमार होता है। तो अभी शुक्र अलहम्दुलिल्लाह एक जगह भी बन गया है। तो अभी सर एक किला एरिया में मंशियात को बिल्कुल सर गढ़ भी है, 80 से ज़्यादा तादाद वहाँ हम पीते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। और सर फिर हम सबसे ज़्यादा मायूसी का बात है कि सर हमारे आजकल लेडीज़ भी कुछ हैं मंशियात में ये वबा फैल रहा है सर। एक ये चीज़ सर इसके ऊपर ये पॉइंट नोट कर सर किले पे। दूसरा सर एक है जो कपास वाले सर तकरीबन जो डाटसन आ जाते हैं किलियों से, सर ये लोग डाटसन से 3 फुट साइड में निकाल देते हैं। आप लोग शायद चेक किए, 3 फुट मजीद अपना जो उनका डाटसन का जो एरिया होता है उससे 3 फुट बाहर जो डाटसन वाले या मोटरसाइकिल वाले क्रॉस कर लेते हैं सर, वो अचानक उससे लग जाता है और इससे सर बहुत से वाक़या हो गए हैं सर। कोशिश करें सर डाटसन वालों को तंबे करें कि वो ये 3 फुट जो बाहर निकालते हैं अपना बॉडी से, ये कोशिश करें अंदर डाल दें सर, ताकि कोई ऐसा ख़तरा एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए। ये सर कुछ निशानियाँ हैं, बाकी सब लोगों ने मौलवी वगैरह मदरसे के साथ ही, अब वो सबको पता है, कई दफ़ा शिकायत भी हुई है, लेकिन ये अड्डे बंद नहीं हो रहे। हमें काफ़ी परेशान किया हमारे जो तलबा हैं। ऐसा ना हो कभी कोई तालिब इल्म इससे जो है नासुर में अगर मुब्तला हो,
फिर इनके वालिदैन हमसे कहेंगे कि मदारस में आप लोग मनशियात इनको सिखाते हैं या कुरान और हदीस सिखाते हैं, ये फिर हमारे लिए बड़ी बदनामी होगी। और ख़ासकर जब वहाँ पे कोई चीज़ चोरी होती है, हम तलबा को पकड़ते हैं भाई आपने चोरी की, लेकिन बाद में पता चलता नहीं यही मनशियात वाले लोग हैं जो इस नासूर के अंदर मुब्तला हैं। बंग सरेआम बेचा जा रहा है सर, बाकी जो मनशियात के असबाब है वो सारे बेचे जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है सर कि किसी को पता ना हो, इंतज़ामिया कोई, बिल्कुल गलत बात है। कोई कहे जनाब हमें पता नहीं किस वक्त ये जो मनशियात बेचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी इस तरह भी हुआ है कि हमने वो तस्वीर बिल्कुल उनको भेजे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये भी सर बहुत बड़ी मुसीबत है इस नासूर के अंदर। अब देखो जो बच्चे हैं इस वक्त उनके पढ़ाई का वक्त है, उनको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो इस नासूर के अंदर मुब्तला है। को सरावान में कोई मसला होता है या कोई मरीज़ है, हमें शहर की तरफ आना होता है तो हम इंतहाई खौफ का शिकार होते हैं। बहुत बड़ा रूट है, आप लोगों का जो लास्ट चेक पोस्ट है वो सियापट कीरिया पे है, तो लिहाजा मैं आप लोगों को दरख्वास्त करता हूं कि आप लोगों का जो लास्ट वो पुलिस चेक पोस्ट है तो आप उनको एक गाड़ी मुहैया करें और 4 सिपाही मुहैया करें, वो ताकि वो अपना गश्त का एरिया बढ़ाएं, सरावां तक ले आए, ताकि हम लोगों को कोई मुश्किलात ना हो। जिसकी वजह से हमने अपने सरावान के शहरी मुख्तियार मेंगल जिस वक्त वो जिसका वो अगवा हुआ था, मेरे ख्याल में आप इस पोस्ट पे नहीं थे एज ए पुलिस ऑफिसर, ये रिकॉर्ड में आपके रिकॉर्ड में है, उनके केस का आपको बखूबी पता है। तो अगर हमारे पुलिस इंतहाई ईमानदारी से और देनतदारी से काम करता तो वो ऐसे नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं होते। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग अपना जो पेट्रोलिंग का जो एरिया है वो भी आप लोग सरावां तक ले आएंगे ताकि कल को ऐसा कोई मामला पेश ना आए। मतलब इल्ज़ाम ना दूंगा कि इसमें पुलिस भी मुलव्वस है या पुलिस की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरबदर है। हमारी बाज़ार 70 साल पुरानी बाज़ार है सर, वो 15-14 फुट भी नहीं होगी। गुंजान आबादी है, शहर की आबादी बढ़ रही है, हर घर में 6 से 7-8 मोटरसाइकिलें, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं, वो सब बाज़ार में आती हैं। इस बात को लेकर मैं पुलिस को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, लेकिन पुलिस के जो अपने काम होते हैं वो अहकामात जारी करते हैं। हर रोज़ हम देखते हैं कि उन्होंने एक पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया कि इस चीज़ पर कार्रवाई होगी, होता कुछ भी नहीं। 4 नोटिस मुझे याद हैं जो कपास वालों को दिए गए कि आप अपने दुकान यहाँ से शिफ्ट करें, अभी तक आप वहीं उसी जगह की जगह पर हैं। 2 नोटिस कबाड़ी वालों को दिए गए हैं, शायद ये आपसे पहले की बातें हों, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने दिए हैं सर, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर बात यह है जब आप अपने ही कामों पर कार्रवाई ना करेंगे तो हम उस पर क्या अमल करेंगे? हम उस पर अमल नहीं कर सकते। रही चोरी की बात, आपसे पहले यहाँ पर बेशतर चोरियां हुई, जराइम पेशा लोगों ने वर्दी वालों का नाम इस्तेमाल कर सर घरों पे जो है मतलब छलांगे लगाई या चोरी की। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें भी कंट्रोल हो गई हैं, वो भी 50% पुलिस की वजह से, 50% हमारे उलमाए कराम और सियासी पार्टीज की वजह से कि इन्होंने इस दर्द को महसूस किया। हर जगह हर चौराहे पर इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया। कचहरियाँ वक्ता बवक्ता होते रहते हैं, लेकिन मसाइल हम लोग शादी करते रहते हैं। जिस तरह कि मौलाना साहब ने बताया कि इनको अभी तक कोई मसला नहीं हुआ, बाकी सब मसाइल पे लोगों ने बात किया। मैं सिर्फ एक खसूसी मसला जो चोरी आए रोज़ चोरी बढ़ते जा रही हैं। परसों रात मेरे अपने अंकल के घर पर उन्होंने डाका डाला था, वहाँ पे सामान उड़ाए गए थे, मोटरसाइकिल ले गए थे, उनको वहाँ पर कंप्यूटर, लैपटॉप, CCTV कैमरा वो पड़ी हुई सब उठा के ले गए थे। जब यहाँ पे दरख्वास्त दे दिया, SHO साहब खैर बच वहाँ पे आ गया, जय वकील पे इन्होंने मुआयना किया, हमारे साथ खस्ताओं भी किया, फोरेंसिक टीम भी आया, लेकिन सवाल यहाँ पे बनता है कि आया ये चोरी क्यों होते रहते हैं? आया हमारे CID वाले पुलिस CID इतना कमज़ोर है कि इनको पता ही नहीं है कि काम पे चोरी हो रही है और कौन कर रहे हैं, सब इनको पता है। लेकिन आजकल जो चोर है इनकी CID हमारे इंटेलिजेंस विंग उनका हमारे पुलिस वालों से बहुत आगे बढ़ चुका है। वो पुलिस बस अड्डों में बैठी हुई है, कौन आया कौन गया, कौन मुसाफिर के लिए जा रहे हैं। जिस तरह के हमारे जो बंदे गए थे कोयटा सफ़र के सिलसिले में, इनको पता चल गया कि यहाँ पे ये लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, इन रात आए डाका डाला कर निकल गए। सबसे पहले हमारे आप लोगों को करना चाहिए कि अपना CID विंग इनको अपना मजबूत बनना चाहिए, कराना चाहिए। कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सब इनको जिस तरह की उनको पता है, आप लोगों को भी इस पर काम करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके खिदमत में जो हमारे दोस्तों ने अमन के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार किया, यकीनन हम भी इस शहर में रहते हैं, हमारा जीना मरना खारान से है, हमारा वाबस्तगी खारान और बलोचिस्तान पाकिस्तान से है। यकीन कि हम यहाँ पे अमन होगा और शादी आएगी, तरक्की होगी,
लोग सुख के सांस लेंगे, तमाम लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ होंगे। अगर अमन अमान ख़राब होगा, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हम लोग होंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे इलाके का MP जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो इलाके का MP वो भी चाहता है कि खारान में अमन हो, खुशहाली हो, यहाँ के हमारे बच्चे सही तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि बच्चे हमारे मुस्तक़बिल के मेमार हैं। अगर यही बच्चे कल तालीम हासिल करेंगे, नौकरी उनको मिलेगा, वो अपनी कौम की खिदमत करेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, सारे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे खुशी